Hello students, welcome to your education. I am Jitendra Kumar Tyagi. So those who appeared for GATE examination and due to some reasons they could not score well in the GATE examination, okay, or who think that they may not qualify the GATE examination, and they now don't have any information that what should they now, okay, what should they do now? Should they go for next year, should they take drop or join some private college, or what should they do? Many students are having confusions in their mind. So students, in our life we have many opportunities. If we lose some one opportunity due to some reason, then we should look for other opportunities also. We should always be in searching mode, okay, and working mode, okay. Searching and working should always continue, right? So now for such students who want to get a good package, just like the students in IITs get, okay, and they are not getting good marks in this GATE examination. So there is a very important institution in our country. The placements where are equivalent to IIT, not less than IIT, okay, and that institute is IIIT Hyderabad, you know. So you can join IIIT Hyderabad. That is also a very good research institute for the students who want to do a research, who want to do PhD or masters in research, okay, and also for those students who want to do MTech, okay, in some good specialization. The average package in IIIT Hyderabad is similar to that in IIT Hyderabad or in other IITs also, okay, around 22, 25, 28, 30. This is the range, 32, 35. This is the range in which package there also students get, okay. Very good research facilities are available there, okay, so you can study well there. Now how to join that institute? This question will come into your mind, okay. So here is the answer. You know, IIIT Hyderabad conduct postgraduate entrance examination, that is called PGEE Monsoon 2024. So every year they conduct this examination. So now in 2024 also they are going to conduct this examination, okay. So PGEE examination 2024 is going to happen, and in this video I am going to discuss all important points related to this examination, okay. So let us discuss one by one. First of all, what are the important dates which you should note down in your diary? You know, all the students who want to join some institution for MTech program or MS program or PhD program, you should keep a diary with you and you should write down all the information, relevant information in that diary, because you will be required again and again that information, right? So please note down these important dates, okay. From 20th of Feb forms are open, and last date to apply for IIIT Hyderabad PGEE examination is 1st April, okay. And there will be a examination, okay. So there will be a CBT that will be conducted at different offline centers, okay. So examination will be conducted on 4th of May. Time will be 2 to 5 PM, okay. Please note down, ठीक है. इनका जो एग्जाम है ऑफलाइन होता है, अलग अलग सेंटर्स पे जाना पड़ता है आपको, ठीक है. अपनी चॉइस के सेंटर्स की वो लिस्ट देंगे आपको एक, उसमें से आप सेंटर सेलेक्ट करोगे, वहां पे जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, राइट. नाउ एमएस के जो इंटरव्यूज होंगे उनका डेट है 5 और 6 जून. ये होंगे IIIT हैदराबाद के कैंपस में, एंड पीएचडी इंटरव्यूज विल आल्सो बी कंडक्टेड इन द कैंपस ऑफ IIIT हैदराबाद, ओके. फॉर एमटेक एग्जामिनेशन there is no interview, so we will discuss that also. First of all, you please note down these important details and don't forget this date, 1st April, okay, the last date. Now programs. So what are the different programs there? First is MTech program, that is of 2 years. Now what is the selection process? For MTech you have to appear for written examination, okay, computer based test at offline centers. There will not be any interview, only written examination will be there. On the basis of the marks obtained you will get admission, okay. And if you want to join Master of Science by Research, you know, generally we think that MS is of 3 years or 2.5 years, but this is the institution where you can complete your MS in 2 years, okay. The duration of MS is also 2 years, okay. Now for MS Research there will be written examination, same day, same examination will be there,
but there will be some interview also. So there are two stages, okay? Examination plus interview, right? For MS research program, and for PhD program duration is 5 years, and there will be some written examination and plus there will be interview, okay? Interview will be at the Hyderabad, IIIT Hyderabad. Okay, now let us discuss another important point. So application fee is 2500, please note down. Now for MTech program, so what are the different disciplines, eligibility criteria? So there is computer science and engineering, okay? There is MTech in computer science and engineering, right? If you are having BE, BTech, ME, MTech, all branches, right? So all are eligible. किसी भी ब्रांच में आपने BE, BTech किया हो, you all are eligible. MSc किया है आपने, MCA किया है या MA Maths किया है, you all are eligible, right? Now सिलेक्शन प्योरली बेस्ड है किस पे, रिटन टेस्ट जो होगा आपका उस पे, रिटन एग्जामिनेशन, उसमें जो टेस्ट आएगा उसमें कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपकी ब्रांच जो भी है बट सिलेबस विल बी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डोमेन एंड देयर विल बी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आल्सो. ओके, सो इसमें डोमेन सब्जेक्टिव टेस्ट कंप्यूटर साइंस और प्लस जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस रहेगा मिक्स, राइट? नाउ अनदर ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, CSIS. सो अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टेस्ट का पैटर्न भी सेम है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रहेगा. देन देयर इज ए ब्रांच कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. सो इसके लिए रिक्वायरमेंट है BE, BTech इन सिविल और पेपर भी आपका सिविल में होगा प्लस जनरल एप्टीट्यूड, ओके? एंड देन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट, PDM. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके, डिजाइन साइंस और इक्विवेलेंट, एंड CSE. So here also the syllabus will be CSE and general aptitude. Okay, please note down this for MTech program. So if you are from electronics background, if you are looking for MTech program, okay, so in electronics domain there is no MTech program here, but there is MS program. So let us discuss about that. Now let us discuss about MS or PhD. So if you want to do MS or PhD in computer science, okay, then eligibility criteria is BE, BTech, all branches, okay, and then syllabus will be CSE as well as general aptitude. Note down this, okay? And if you are going for PhD in electronics and communication, MS or PhD in electronics and communication in VLSI, you are interested in VLSI suppose, so then you are eligible if BTech in all branches, and syllabus will be from electronics and communication domain. So for electronics students, for electrical students, for instrumentation students who want to join VLSI, so this will be the choice. You have to apply for MS program, okay? MS program आपको अप्लाई करना है और आपको EC का पेपर देना है, EC में, और जनरल एप्टीट्यूड साथ में रहेगा, राइट? एंड सिविल इंजीनियरिंग में आपको देना है तो सिविल का पेपर, सिविल का सिलेबस और जनरल एप्टीट्यूड. और एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सो इसमें MSc इन फंडामेंटल साइंस वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, ME, MTech, BE, BTech इन CS, IT, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल, MCA, और सिलेबस में केवल जनरल एप्टीट्यूड रहेगा फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ओके, नाउ PhD, ठीक है? अब PhD के लिए कंप्यूटेशनल लॉजिस्टिक लिंग्विस्टिक एक ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट CL. सो सारी ब्रांच एलिजिबल है. टेस्ट में केवल जनरल एप्टीट्यूड रहेगा PhD के लिए, और कंप्यूटेशनल न्यूरल साइंस इसमें अगर PhD करेंगे सो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा सिलेबस में. ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं सारी की सारी आपकी. स्पेशल इंफॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया है ME, MTech, ठीक है ना, BTech भी नहीं है, ME, MTech, और जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस में रहेगा. कोग्निटिव साइंस में अगर कोई जाना चाहता है सो ऑल BTech स्टूडेंट्स एलिजिबल और जनरल एप्टीट्यूड सिलेबस में रहेगा. ह्यूमन साइंस एक ब्रांच है, ह्यूमन साइंस. सो अगर किसी ने MA किया है और वो PhD करना चाहता है तो यहाँ पे कोई टेस्ट भी नहीं है, ठीक है? आपके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है? ये आपका ह्यूमन साइंस में आप PhD कर सकते हैं. नाउ सिलेबस जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखो, जनरल एप्टीट्यूड जो है 90 मिनट्स का रहेगा और सब्जेक्ट टेस्ट भी आपका 90 मिनट का रहेगा. 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जनरल एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, ठीक है ना, और साथ में कुछ बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज और मैथमेटिक्स की नॉलेज. ये आपका सिलेबस रहेगा जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन से, ओके? और मैथमेटिक्स में मेनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. नाउ सब्जेक्ट पेपर के अंदर भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा यहाँ पे, देखो. सब्जेक्ट पेपर में
ये कॉमन रहेगा किसके लिए, सीएसई के लिए, ईसी के लिए और सिविल के लिए, ठीक है। इसमें लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे और कैलकुलस से। ये 2 टॉपिक आपको करने हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। और कंप्यूटर साइंस में जो सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा उसका ये सिलेबस रहेगा, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमएस देना चाहते हैं तो ये सिलेबस रहेगा ईसी डोमेन का, यहां पे नोट कर सकते हैं। नाउ सिविल के लिए सिलेबस यहां पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन था। अब देखो, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका गेट क्वालिफाई नहीं है या गेट में नॉर्मल स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वहां पे, किसी आईआईटी से कम नहीं है अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद से पढ़ते हो। और रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा नाम भी है। फ्यूचर में अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। ओके, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है, ठीक है। अब जो हमारा पोस्ट गेट काउंसलिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली वी हैव लॉन्च ए मॉड्यूल, पोस्ट गेट मॉड्यूल हमने लॉन्च किया है, ठीक है। तो उस पोस्ट गेट मॉड्यूल में जो गाइडेंस तो प्रोवाइड किया जाता है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प की जाती है, राइट। सो जो ये पीजीडब्ल्यू एग्जामिनेशन है, इसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें भी आपको कंटेंट वाइज भी आपको हेल्प की जाएगी, राइट। अभी जो मैंने सिलेबस दिखाया है, तो हम क्या करते हैं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है योरपीडिया में, ठीक है, स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनके इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाए। और साथ में लाइव क्लासेस भी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। जैसे एप्टीट्यूड सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंपॉर्टेंट क्लासेस प्लस लाइव रिकॉर्डेड दोनों हो सकता है। तो कंटेंट में भी आपको सपोर्ट किया जाता है। जो पार्ट ये जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे पोस्ट गेट मॉड्यूल, ठीक है ना, तो उनके लिए ये अलग से इसका कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं है, पोस्ट गेट मॉड्यूल का ही पार्ट रहेगा। उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है पूरा हेल्प किया जाएगा उसमें, ठीक है। क्लासेस, लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं और साथ में रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, एंड जिन्होंने पोस्ट गेट काउंसलिंग मॉड्यूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने अभी नहीं किया है और वो केवल और केवल इसी पे फोकस करना चाहते हैं, सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है, तो उसके लिए आप क्या करो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो इस एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक गूगल फॉर्म है, सो यू फिल द गूगल फॉर्म, ठीक है। उसके बेसिस पे जो भी नंबर ऑफ गूगल फॉर्म्स आएंगे स्टूडेंट्स का, जो ब्रांचेस होंगे उसके हिसाब से, सो वी विल लॉन्च ए डेडिकेटेड मॉड्यूल। वो सब जो पोस्ट गेट काउंसलिंग अगर ज्वाइन नहीं कर पाता है कोई बच्चा किसी वजह से, ठीक है, तो वो केवल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए, तो इसके लिए जो कंटेंट रिक्वायर्ड है वो कंटेंट प्लस लाइव क्लासेस उसका पार्ट रहेंगी। सो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यू कैन कॉल द एग्जीक्यूटिव्स एंड यू प्लीज फिल द गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। जो गूगल फॉर्म भरे जाएंगे अकॉर्डिंगली ये मॉड्यूल आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट।